Uh, Hello, can everyone hear me? तो हम session बस resume करने जा रहे हैं. The only reason we weren't starting this session earlier was that participants are really taking their time coming back. Uh, I guess हमारी 42, 46 की class है और उसके अंदर से अभी there are only 26 or so people present in Zoom meeting. वलीद आपकी एक्सेल की शीट नजर आ रही है मैं also अपने Sorry. Let me stop my sharing. Thought. हेलो हाँ साउथ भाई क्या हाल चाल है ठीक ठाक हेलो जी फवाद सर. नहीं मैं ख्याल से किसी और से बात कर रहे थे उनका माइक Right. Sir, I have one question here that as we are moving, the topic getting interesting, and my concern is that this recording would be shared plus the slide that you are doing time by time. So would it be shared also? अच्छा इसके लिए हम लोग स्लाइड्स वगैरह शेयर करेंगे जिसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड है इस पूरी जो डेमो दिखाया और जो हम लोग अभी लैब करने जा रहे हैं उसकी लेकिन इस पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो अभी हम लोग श्योर नहीं कि आपके साथ शेयर होगी नहीं होगी लेकिन आपके साथ एक जो स्लाइड डेक होगा वो आपके लिए पूरा एक गाइड होगा तो जी उसकी Sir, I'm a little bit concerned here because that's nice because this conversation took place, the people participated, question raised. These are informative things which we are very concerned about it. So I would appreciate if you share this recording. It would help us a lot because this whole session cannot be memorized for a longer period. This recording would help us easily. चलो I हम don't मैनेजमेंट से understand. बात So करते हैं please, Definitely. this is important to us. Sir, Faisal, I do get your concern, and as soon as the session is finished, we will talk to the administration. We're just waiting their go ahead for it to be shared. That's the only thing that Ali wanted to highlight here. It's not that we're not going to be sharing this, but that is one of the reasons why we are recording this session. And as soon as the session is finished, before the day is out, most probably we will share all of the recorded videos, including the demo and the lecture sessions जिसके अंदर लोगों ने सवाल जवाब किए थे, those recordings and the slide sets with you. Yeah, really, I appreciate, sir, this thing. It would help me especially because I'm thinking in a broader spectrum of my department, and even because I'm belonging to the financial institute, which is going to be a bank in future in a couple of months. So if this thing is missing out, really, it would be a big trouble for me because I'm very concerned about this thing, and really, I'm planning to separate my department for this data science. If it's available, it would add value a lot to me and for my company also. Right. Sure. So I appreciate your concern, and I think Ali, you should definitely write to the administration right now about that. Okay. ठीक है So without further ado, I guess we have 30 or so people in the call now. Resume the demo because we cannot keep on wasting everyone's time. Um, so last time where we left the session was was that we had gone through the training pipeline and we had created a model
हम लोग अपना मॉडल ट्रेन कर चुके थे, उसकी इवैल्यूएशन कर चुके थे। उसकी इवैल्यूएशन के अंदर हमने उसका ROC कर्व, उसकी प्रिसीजन रिकॉल कर्व और the rest of the evaluation results we had visualized those, और उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हमने अपने मॉडल को इवैल्यूएट कर लिया था। नाउ कंसिडर के ये वाला मॉडल, इस एक्सपेरिमेंट को आप as a data scientist you think that this is good enough to go into production. So in production now what you want to do is you want to create a web service जिसके ऊपर आप किसी भी नए यूजर का डेटा थ्रो करते हैं कि उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या था या उसकी ब्लड शुगर क्या आ रही थी और उसकी प्रीवियसली कितनी प्रेगनेंसीज रह चुकी हैं, और उसकी बेस के ऊपर ये मॉडल हमें उसी वक्त रियल टाइम में बता दे कि प्रिडिक्शन क्या है उस यूजर के बारे में, डज ही हैव डायबिटीज और नॉट। तो उसके लिए डिजाइनर के अंदर बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम अपने इसी ट्रेनिंग पाइपलाइन से अपनी इन्फ्रेंस पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। हाउ डू वी डू दैट? वी गो बैक टू द डिजाइनर, और इस बार डिजाइनर में मुझे नजर आ रहा है कि ये डायबिटीज की ट्रेनिंग पाइपलाइन जो मैंने पहले क्रिएट की है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं मॉडल्स में जाऊं, वेट, द मॉडल लिस्ट हैजंट बीन अपडेटेड येट बिकॉज वो प्रॉब्ली रजिस्टर नहीं हुआ। खैर, डायबिटीज ट्रेनिंग पाइपलाइन को मैं दोबारा खोलता हूँ। इसके अंदर जो सारी पाइपलाइन हमने डिजाइन की थी वो यहाँ पे इसी तरीके से स्टोर्ड है। Now what we want to do is we want to create an inference pipeline, और inference pipeline के अंदर हमारे पास दो choices available हैं। एक real time inference pipeline create की जा सकती है और batch inference की pipeline create की जा सकती है। जो real time inference pipeline है वो हमें real time में results provide करेगी as a web service। जो batch inference pipeline है उसे हम इसी तरीके से रन करेंगे अपने डिजाइनर में से, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग पाइपलाइन को रन किया। ऑफ कोर्स इसकी स्केड्यूलिंग वगैरह की जा सकती है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द रियल टाइम इन्फ्रेंस पाइपलाइन राइट नाउ। सो वी गो अहेड एंड क्लिक दैट, और अपॉन क्लिकिंग दैट अज़ूर का मशीन लर्निंग जो डिजाइनर है वो क्या करता है कि जो आपने ट्रेनिंग की पूरी पाइपलाइन क्रिएट की है उसके हिसाब से उसको देखते हुए जो एक प्रीसेट इन्फ्रेंस के लिए आपको डिजाइन चाहिए वो उस तरीके से आपको एक कैनवस के ऊपर सारी चीजें मॉड्यूल्स अरेंज करके दे देता है। और इसको मैं I'll take a minute or two to explain कि अभी डिजाइनर ने ऑटोमेटिकली ये जो हमारे लिए एक पाइपलाइन क्रिएट किया है इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर हो ये रहा है कि अगर मैं वापस अपनी ट्रेनिंग पाइपलाइन को रेफर करूं तो इससे हमारे पास दो आउटपुट्स जनरेट होती थी। एक आउटपुट ये कि जो हमने नॉर्मलाइज किया अपने डेटा को उसके वेट्स क्या थे, और दूसरी आउटपुट ये कि जो ट्रेनिंग मॉडल था जो हमने ट्रेन कर चुके मॉडल वो भी अब हमारे पास एज एन आर्टिफैक्ट है इस टाइमलाइन इस पाइपलाइन का अवेलेबल। सो ये दोनों रिसोर्सेज जो है ना मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये जो फर्स्ट वाली मैंने अभी सेलेक्ट किया है TD ट्रेनिंग पाइपलाइन नॉर्मलाइज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, ये बेसिकली वो वेट्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी नए आने वाले डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे। और जो मेरे पास ये ट्रेनिंग पाइपलाइन ट्रेंड मॉडल है, बेसिकली this is the logistic regression model that was trained and saved as a result of our previous run with the training pipeline. और ये पाइपलाइन क्या कर रही है कि वेब सर्विस से जो भी डेटा इनपुट होगा उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? जो हमारे नॉर्मलाइजेशन के वेट्स थे उनको एज अ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बना के इस नए आने वाले डेटा के ऊपर अप्लाई करेगी। और वंस दैट न्यू इनकमिंग डेटा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड तो फिर उसके ऊपर इस मॉडल को यूज करते हुए जो कि ट्रेनिंग से हमें मिला है उसके ऊपर स्कोरिंग हो रही है, राइट? और स्कोरिंग करने के बाद क्या हो रहा है कि लेट मी रिमूव दिस इवैल्यूएशन फ्रॉम हियर, हमने ये एक छोटी सी चेंज की, और स्कोरिंग होने के बाद जो स्कोर रिजल्ट्स हैं वो वापस वेब सर्विस आउटपुट को जा रहे हैं। नाउ
वेब सर्विस इनपुट के अलावा एक और जगह से हमारे पास डेटा आ रहा है, दैट इज डायबिटीज डेटा सेट. दिस इज जस्ट टू कंफर्म कि ये पाइपलाइन सेम डेटा के साथ चलती है या नहीं चलती है. तो हम सेम डेटा सेट से इनपुट दे के इसे एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि इस डेटा के साथ इस पाइपलाइन के अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा. तो एक तो तरीका ये है कि मैं सेम डेटा सेट को इनपुट करके मैं अपनी पाइपलाइन चेक कर लूँ. एक और तरीका ये है कि मैं कोई सैम्पल डेटा, डमी डेटा इसके अंदर इनपुट करूँ खुद से डिफाइन करके, और खुद से डिफाइन करके जब मैं वो इनपुट करूँ तो उसके ऊपर मैं चेक वैलिडेशन करूँ अपनी नोटबुक की कि ये पाइपलाइन सही चल रही है या नहीं चल रही है. राइट. सो इस पाइपलाइन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस. मैं अपना ये डायबिटीज डेटा सेट यहाँ से रिमूव करूँगा. इसकी जगह पे I am going to add a module called enter data. Now enter data manually basically हमने जिस डेटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग किया है हम उसी के फॉर्मेट में कोई अपना डेटा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर आउटपुट लेके चेक कर सकते हैं कि पाइपलाइन ठीक से चल रही है या नहीं. सो लेट्स से कि हमारे पास एक CSV डेटा है जिसके अंदर हेडर भी अवेलेबल है और मेरे पास यहाँ पे फिलहाल स्लाइड्स सेट जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूँगा उसका सम सैम्पल डेटा जो कि मैंने पहले से उसी फॉर्मेट के ऊपर CSV फॉर्मेट में रखा हुआ है. राइट. और मैं ये सेम डेटा मैं इस एंटर डेटा मैनुअली वाले को इसके साथ में कॉन्फ़िगर करता हूँ. एंड वन मोर चेंज दैट आई एम गोइंग टू डू हियर जस्ट टू शो कि आप यहाँ पे पाइथन को यूज़ करके प्रेडिक्शन लेने के बाद भी डेटा के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकती हैं. इवन इफ यू आर यूजिंग डिज़ाइनर, इवन इफ यू आर यूजिंग द एज़्योर डिज़ाइनर, उसके बावजूद आप पाइथन की नोटबुक के कोड्स को यूज़ करके आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हैं. सो आई ऐड execute Python script और execute Python script का यहाँ पे मॉड्यूल ऐड करते ही आपको यहाँ पे राइट साइड पे नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक Python script लिखने के लिए एक विंडो आ गई है जिसके अंदर मैं जो मर्जी कोड लिख के अपने उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ. एंड we'll go over this in just 1 minute. Let me just join these inputs and outputs. So what we see is okay, once we click on edit code, I can see this little Python code. वो क्या रहा है, सिर्फ pandas import हो रहा है और एक मेरा main function है जिसके अंदर up to 2 inputs मैं ले सकता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि up to 2 inputs हैं. उसके अलावा मैं एक script bundle zip file upload कर सकता हूँ just to give it some sort of dependencies. अगर आप कोई बहुत out of the way जाके कोई आपकी ऐसी डिपेंडेंसी है जो Azure by default मीट नहीं करता. राइट. और इस फंक्शन के अंदर once I've got my data set, तो उस डेटा सेट के ऊपर जो भी मैं pandas वाले ऑपरेशंस लगाना चाहूँ वो मैं लगा सकता हूँ. And whatever I want to return, I can return as an output of this function. और इस फंक्शन की जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं सेम वही इस मॉड्यूल की इनपुट्स और आउटपुट्स एक्ट करेंगे. सो आई हैव सम बॉयलर प्लेट कोड राइट हियर विद मी जो कि मैं इमीडिएटली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ. सो इस कोड के अंदर ऑल दैट्स हैपनिंग इज कि डेटा फ्रेम 1 मतलब मेरी इनपुट 1 के अंदर जो भी डेटा फ्रेम आ रहा है उसके अंदर से मैं सिर्फ पेशेंट आईडी, स्कोर्ड लेबल्स और स्कोर्ड प्रोबेबिलिटीज वाले ये तीन कॉलम्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. बाकी सारे कॉलम्स जो हैं उन्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ आउट ऑफ व्हाटएवर डेटा सेट वाज बीइंग स्कोर्ड. और वंस आई हैव सिलेक्टेड दीज 3 कॉलम्स, तो इन तीनों कॉलम्स में से जो स्कोर्ड लेबल्स वाला कॉलम है इसे रीनेम करके मैं डायबिटीज प्रेडिक्शन का नाम दे रहा हूँ और जो स्कोर्ड प्रोबेबिलिटीज है उसको रीनेम करके मैं प्रोबेबिलिटी का नाम दे रहा हूँ. And once I have done this,
small operation on this data frame, I am going to return this data frame as an output of this function. So I'll click save, and now it's time to execute this function, this whole pipeline. और इसके लिए of course मैंने जो compute target है वो मैं cluster 1 compute cluster में use कर सकता हूँ. So I'll just go ahead and do that. बल्कि उससे पहले what I should probably do is, क्योंकि मैंने inference cluster पहले नहीं create किया था, I'm going to quickly go ahead and create in cluster region में सेम रख रहा हूँ, Southeast Asia, production, virtual machine size मैं फिलहाल D3 V2 कर रहा हूँ. Once जब आप लोग कर रहे होंगे तब make sure to no, not instead of D3 V2 I will use DS2 V2. जब आप लोग यूज कर रहे होंगे then you're going to use DS2 V2. I'm going to use DS3 V2 so that we can get over this quickly. क्लस्टर का पर्पस ऑब्वियसली जैसे आपने कहा था, आपसे पहले डिस्कस हुआ है कि प्रोडक्शन के लिए आप एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए एक अलग से आपकी एनवायरनमेंट बनी होती है. सेम उसी तरीके से आप अपने क्लस्टर्स भी सेपरेट रखते हैं ताकि आपकी डेवलपमेंट की जो कंप्यूट है वो आपकी प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट के क्लस्टर को इफेक्ट ना करे. मसलन अगर आप कोई नया मॉडल टेस्ट करने लगते हैं और उसको टेस्ट करने में ही आपकी बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर यूज हो रही है, तो फिर आपका जो प्रोडक्शन वाली अगर सर्विस सेम क्लस्टर पे चल रही है तो वो इफेक्ट होगी, यानी आपके एंड यूजर को जो सर्विस मिल रही है वो इफेक्ट होगी. वी डोंट वांट दैट, सो विल यूज इट एज अ सेपरेट काइंड ऑफ डेव टेस्ट क्लस्टर. और इसके लिए मैं अगेन 2 नंबर ऑफ नोड्स यूज कर रहा हूँ. गो अहेड क्रिएट. आएगा भाई ना कोई इंटरव्यू लेगा आएगा असमाई. Meanwhile, I'll go back to my diabetes training pipeline और इसे मैं सबमिट करता हूँ using a new experiment, ताकि हम meanwhile जब तक हमारा inference का cluster डिप्लॉय हो रहा है तब तक हम अपनी ये पाइपलाइन टेस्ट कर लेंगे whether this runs without error or not. तो this is my inference demo. Submit this. Meanwhile मेरे पास मेरा वो inference cluster compute का जो है create हो रहा होगा. So it's being provisioned.
provisioning of new compute resources usually takes some time. उसके लिए पीछे से डेटा सेंटर में से कोई ना कोई मशीन डेडिकेट की जा रही होती है आपके पूरे वर्क स्पेस के अंदर, और उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड जो आपकी इन्वायरमेंट वगैरह है वो सेट की जा रही होती है, जिसकी वजह से दिस इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग. सो दिस इज नॉट एन एक्टिविटी जो कि कोई भी डेटा साइंस टीम डेली 10-10 बार करे. यूजुअली होता ही है कि वंस यू क्रिएटेड इट तो आप सिर्फ उसे स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं अगर आपने प्रोडक्शन के अंदर उस सर्विस को रखना है. सो ये जो वन टाइम क्रिएशन वाला डिले है, this usually doesn't become a bottleneck in running your experiments, क्योंकि आपने कोई ना कोई एक ऐसा क्लस्टर टेस्टिंग के लिए बना के रख दिया होता है. एक्सक्यूज मी विनीत, जी एक ये क्वेश्चन है तैमूर को, ये प्लीज एड्रेस करना. हाँ. So Taimur, your question is, we use execute Python scripts in order to change the name of variables or apply some transformations. Yes. जी Taimur. कंफ्यूजन थी कि एक तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया अपने मॉडल पे, ठीक है, और हमने ट्रेन किया. नेक्स्ट हमने जो पाइथन स्क्रिप्ट अप्लाई किया उस पे, वो हमने इसलिए किया कि हम जो नेम्स हैं बेसिकली हम उन्हें चेंज कर सकते हैं ताकि हम वेब सर्विस में वो नेम डिस्प्ले कर सके. जैसे हमने डायबिटिक, इसलिए हम इसको करते हैं. अदरवाइज इसका और यूज कोई नहीं है. ट्रांसफॉर्म मतलब फॉर एग्जांपल कोई ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, कोई और एल्गोरिथम तो नहीं अप्लाई कर रहे हम. It really depends on your application. मतलब यहाँ पे Python script जो है ना, as a module it holds a lot of power. You can do whatever you want to the data with it. अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आती है, अगर आप जिस तरीके से मॉडल को यूज करना चाह रहे हो, उसके अंदर अगर आपने प्रेडिक्शन लेने के बाद उनके ऊपर कोई पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है बिफोर सर्विंग इट टू द यूजर, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो. एक और यूज यहाँ पे किया है कि इफ आई व्यू द आउटपुट ऑफ स्कोर मॉडल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. उसके अंदर मतलब मैंने 3 वहां पे रोज एंटर की थी ना. स्कोर्ड मॉडल की आउटपुट के अंदर इस आउटपुट के अंदर सारे के सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं, और नेसेसरीली उस यूजर को ये सारे के सारे कॉलम्स नहीं रिक्वायर्ड होंगे, राइट. ये सारे कॉलम्स तो उसने इनपुट के तौर पे दिए थे. आउटपुट में उसे सिर्फ स्कोर्ड प्रोबेबिलिटीज चाहिए, राइट. और उसे मतलब वो क्लासिफिकेशन चाहिए. तो एक काम जो इस पाइथन की स्क्रिप्ट में हो रहा है वो ये भी हो रहा है कि हम बाकी के जो एक्स्ट्रा कॉलम्स थे वो वहां से रिमूव कर रहे हैं. और अगर आप चाहो, यहाँ पे फिलहाल मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं अप्लाई कर रहा, लेकिन अगर आप चाहो और अगर आपकी मॉडल लॉजिक कहती है कि मॉडल स्कोरिंग करने के बाद उनके ऊपर कोई पोस्ट प्रोसेसिंग भी आपने अप्लाई करनी है, सर्टेन टाइप्स ऑफ मे बी प्रिडिक्शंस हैं जो आप यूजर को शो ही नहीं करवाना चाहते, तो उन्हें वहां से रिमूव भी आप कर सकते हो. वहां पे आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह ऐड कर सकते हो. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. तो अब मीनवाइल, अब मसलन मैंने आपको स्कोर्ड मॉडल की आउटपुट दिखाई है. अब जो एग्जीक्यूट पाइथन की आउटपुट का जो रिजल्ट है ना, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ आपके पास ये 3 कॉलम्स आ रही हैं. पेशेंट की आईडी आ रही है, उसकी डायबिटीज की प्रेडिक्शन आ रही है कि वो डायबिटिक था या नहीं था, और कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल कह रहा था कि वो डायबिटिक है या नहीं. तो हम उस पाइथन स्क्रिप्ट को यूज करके ये सारा काम कर पाए. अब जब हमने ये पूरी इन्फ्रेंस पाइपलाइन को एक बार रन करके सबमिट करके देख लिया है कि ये एंड टू एंड काम कर रही है, तो द नेक्स्ट थिंग इज कि, और हमारा ये इन्फ्रेंस वाला क्लस्टर भी डिप्लॉय हो चुका है, तो द नेक्स्ट थिंग इज कि हम इसको डिप्लॉय करें उस क्लस्टर के ऊपर, राइट. और उसको जब मैं यहाँ पे डिप्लॉय पे मैंने क्लिक किया ना,
तो अब मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है कि मैं एक नया रियल टाइम एंड पॉइंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। और जो बेसिकली जो नया रियल टाइम एंड पॉइंट है वो एक रेस्ट इंटरफेस होगी, वेब इंटरफेस, जो इस मॉडल को होस्ट कर रही है और जिसके ऊपर आप जेसन फॉर्म में ये डेटा थ्रो करेंगे तो वो आपको प्रिडिक्शंस रिटर्न करेगा, ठीक है। और इस रियल टाइम एंड पॉइंट को डिप्लॉय करने के लिए मैंने अभी जो इन्फ्रेंस क्लस्टर डिप्लॉय किया है 2 नोड्स का, मैं उसे यूज कर रहा हूँ, एंड देन आई क्लिक डिप्लॉय, ठीक है। अब मेरे पास ये डिप्लॉयमेंट का यहाँ पे प्रोग्रेस चल रहा है कि उस डिप्लॉयमेंट के अंदर पहले मॉडल को रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद उसका रियल टाइम एंड पॉइंट उस मॉडल से आप क्रिएट करते हैं। So we'll wait for the deployment to finish. सर एक क्वेश्चन है। हेलो जी, मोहसिन। हेलो, हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि जो AWS की सर्विसेज हैं वो हमें परचेज करने पड़ेंगी या उसके बगैर भी हम इसको यूज कर सकते हैं? Sorry, Azure, AWS, sorry, I didn't get your question. आप AWS के बारे में पूछ रहे हैं, Azure के बारे में पूछ रहे हैं? सॉरी, Azure। So Azure के ऊपर सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और अकाउंट क्रिएट करके यू लिंक योर पेमेंट इन्फो एंड योर कार्ड विद दैट, और एक बार आप वो उसके साथ आप अपनी पेमेंट और सब्सक्रिप्शन वगैरह सेट कर चुके होते हैं, तो फिर उसके बाद Azure आपको ये वाली चीज़ें क्रिएट करने देता है। एंड देन जो भी इस मशीन की हमने प्राइसिंग की इन्फो यहाँ पे साइट पे देखी थी कि डिफरेंट मशीन टाइप्स के डिफरेंट रेट्स के ऊपर चार्ज हो रही होती हैं, वो फिर जो कार्ड आपने ऐड किया होता है उस कार्ड के ऊपर चार्ज हो रही होती है। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये वाली लैब जो हम लोग के साथ आप लोग करेंगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कि नहीं, तो वो उसका जवाब है कि नहीं। मतलब वो जो भी हम लोग हैंड्स ऑन लैब्स वगैरह करेंगे उसके लिए आपको पे वगैरह नहीं करना पड़ेगा। आई होप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या एम्बिग्विटीज नहीं रह गई इसके अंदर। अगर जब तक क्लस्टर डिप्लॉय हो रहा है, इफ एनी वन ऑफ यू हैज गॉट अ क्वेश्चन देन द फ्लोर इज ओपन। I have a question. जनाब, सर लिख के अली भाई कह रहे हैं कि लिखना चाहिए तो लिख के फिर वो जवाब दे देगी, तो लिखा मैंने 2 दफा तो वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा पता नहीं शुड आई नो आस्क ऑन आई मीन माइक और नॉट। तो चले भाई मैं भाई गया तो अच्छा, अब मैं मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि फॉर एग्जांपल हम मशीन लर्निंग का कोई एक एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये प्री बिल्ड जो ना सारे के सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, अगर हम इनको किसी तरीके से मॉडिफाई करना चाहें अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो क्या हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। दूसरा ये था कि हम जो है सर मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कर दूं। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का आंसर कर दूं। सो अगर मैं अपनी ये ट्रेनिंग पाइपलाइन के अंदर जाके अपने इस 2 क्लास रिग्रेशन मॉडल को देखूँ ना, तो इसके सर यहाँ पे पैरामीटर्स जो है ना, जो इसके पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स हैं, वो यहाँ पे आप डिफाइन करके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ठीक हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ से डेफिनेटली कन्फिगरेबल हैं। अगर आप इनकी ट्वीकिंग करना चाहते हैं या इनकी थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करना चाहते हैं, यू कैन ऑब्वियसली डू दैट। आई होप फाइन, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि जब हम काम कर रहे थे जुपिटर नोटबुक पे, तो हम जो है ना वो डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग के उनको हम यूज कर सकते हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या वो लिबर्टी हमें यहाँ पर है कि हम मल्टीपल जो अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को इकट्ठे यूज कर सकें या हम उनको पैरेलल किसी तरीके से यूज कर सकें,
और उनके जो रिजल्ट्स हैं हम उनको कंपेयर कर सकें कि हमें किस जो एल्गोरिथम है उसका मैक्सिमम ऑप्टिमल हमें रिजल्ट्स है ना वो मिल रहे हैं। राइट। तो जैसे आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं ना कि ये जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है रियल टाइम इन्फ्रेंस पाइपलाइन, इसके अंदर एक आर्टिफैक्ट जो यूज हो रहा है ना वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पाइपलाइन से जो मॉडल ट्रेन हुआ था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूज हो रहा है। अगर मैंने कोई और मॉडल भी ट्रेन किया होता ना तो मैं यहाँ मॉडल्स में जाके यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने कोई सेकंड मॉडल ट्रेन किया होता मे बी डिसीजन ट्री क्लासिफायर का, तो वो मेरे पास होता, मैं उसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता, उसकी भी स्कोरिंग करता सेम डेटा के ऊपर। ठीक हो गया। और मतलब फिर अपनी इस पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर मैं दोनों की आउटपुट्स को मैं कंपेयर भी कर सकता, और मैं फिर उनके अंदर अगर मैंने कोई डिसीजन मेकिंग डायनामिकली करनी है अपने कोड को यूज करके तो एक ऑटोमेटेड तरीके से उसकी आउटपुट में यूजर को प्रोवाइड कर सकता। Sir, I have a question. ठीक है, थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो अच्छा, मीनवाइल अब हमारी जो एंड पॉइंट डिप्लॉयमेंट है नीचे वो जाओ, नीचे जाओ। कंप्लीट हो Sir, चुकी I है। have a question. श्योर। Can we extract SQL Server database on premises on SQL account? Or Sorry? Can we extract data from on-premise SQL Server data? Or we have to extract Excel file? सो जो अगर आपका ऑन प्रेम एसक्यूएल सर्वर कोई एग्जिस्ट करता है और उससे आप डेटा लेना चाह रहे हैं ना, तो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आसान तरीका ये है कि आप उसका पूरी डेटाबेस का एक्सट्रैक्ट लें और उसे उठा के आप अपनी स्टोरेज के अंदर अपलोड करें और वहाँ से उसका डेटा सेट बना लें। द सेकेंड ऑप्शन वुड बी टू कन्फिगर अ डेटा स्टोर और उसको आप अपने ऑन प्रेम उसके साथ सिंक करेंगे So this CDC. will not be real-time syncing from on-premise. It would not be a real-time thing. It could be a near real-time thing. और इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे अपनी थर्ड क्लास के अंदर जब हम डेटा सेट्स और डेटा स्टोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। So meanwhile, I'd like to quickly end this demo quickly. So हमने जो डिप्लॉयमेंट करनी थी अपनी रियल टाइम इन्फ्रेंस पाइपलाइन की वो मैंने हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इन एंड पॉइंट्स आई कैन सी कि जो अभी हमने रियल टाइम अपनी पाइपलाइन थी उसकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे एज अ रियल टाइम एंड पॉइंट आ गई है। सो वंस आई क्लिक दैट तो मुझे ये शो करवाया जा रहा है कि ये Azure के Kubernetes क्लस्टर की सर्विस यूज कर रहा है ऑन द बैक एंड। ठीक है, उसकी मॉडल आईडी ये है, मॉडल रजिस्टर हो गया था ऑब्वियसली। और अगर मैं अपने यहाँ पे मॉडल्स व्यू करके देखूं तो यहाँ पे जो मॉडल मेरा ट्रेन किया गया था वो यहाँ पे अब मेरे पास रजिस्टर्ड मॉडल्स में आ गया, जिसका मतलब है कि इस मॉडल को मल्टीपल सर्विसेज यूज कर सकते हैं। और इस एंड पॉइंट में से अब अगर मैंने डेटा कंज्यूम करना है तो इस एंड पॉइंट का एक रेस्ट एंड पॉइंट बन गया हुआ है और इस रेस्ट एंड पॉइंट को कोई भी ऑथेंटिकेटेड यूजर हिट करके इस रेस्ट एंड पॉइंट से अपनी डायबिटीज की प्रेडिक्शंस ले सकता है एज लॉन्ग एज दे प्रोवाइड द डेटा इन द राइट फॉर्मेट। तो फॉर इंस्टेंस आई कैन गो इनटू टेस्ट और मैं किसी भी नए पेशेंट की इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, उसके सारे के सारे यहाँ पे फीचर्स वगैरह देके मैं यहाँ पे इफ आई क्लिक टेस्ट तो मुझे उसके अगेंस्ट उसकी आउटपुट मिल जाएगी कि इस पेशेंट की ये आईडी है, उसकी डायबिटीज की प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दीज फीचर्स जो मैंने इनपुट में दिए वो ये आई है और कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ आई है, कितना कॉन्फिडेंस है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को इस चीज के ऊपर के ये बंदा वाकई डायबिटिक है। द सेकेंड थिंग वुड बी कि आफ्टर टेस्टिंग हमने इसे कंज्यूम भी करना है और प्रोग्रामेटिकली कंज्यूम करना है। तो फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू राइट पाइथन कोड या C# में अगर मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है या R की मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है, how could I get the output from this model in real time using those languages? तो there are certain things. First of all ये कि उस REST endpoint के साथ ना मुझे एक authentication token चाहिए जिसके साथ मैं अपनी वेब रिक्वेस्ट कंप्लीट कर सकूं। This is more or less for the people from a little bit non-tech side. This is more or less like a password, ठीक है,
और हम अपनी प्राइमरी की यूज़ किया करते हैं अपने इस रेस्ट पॉइंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए. वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द पाइथन एग्जाम्पल इस चीज़ को इस चीज़ का रिजल्ट लेने के लिए. और ये काम करने के लिए ना what we'll do is we'll go into notebooks और notebooks आपकी रन हो रही होंगी उस compute instance के ऊपर जो हमने सबसे पहले create की थी. I'll go into user files, अपने user name पे click करूँगा. I'll create a new file here. ठीक है? And this file is just to run the code and show you कि Python का कोड एक तो मैं interactively यहाँ पे रन भी कर सकता हूँ और इस Python कोड को यूज करते हुए मैंने जो अभी मॉडल डिप्लॉय किया है मैं उससे रियल टाइम प्रेडिक्शंस भी ले सकता हूँ. सो आई विल से diabetes prediction notebook and the file type would be it's a notebook type. Override if already exists. So I have this notebook going on right now. It will take a little bit of time to load up. So the notebook is ready now. और इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि इस नोटबुक को रन करने के लिए जो कंप्यूट पावर यूज हो रही है ना वो मेरी उस कंप्यूट इंस्टेंस से आ रही है जो मैंने सबसे पहले क्रिएट की. कंप्यूट इंस्टेंस वाज द स्टैंड अलोन सिंगल मशीन जो कि मैंने क्रिएट की थी और उसके लिए मैं जुपिटर का कर्नल यूज कर रहा हूँ और पाइथन 3.6 की एनवायरनमेंट यूज की जा रही है. इफ आई वांट आई कैन चेंज द पाइथन एनवायरनमेंट या मैं आर के कर्नल के ऊपर स्विच कर सकता हूँ यूजिंग जुपिटर. बट राइट नाउ वी आर गोइंग विद द पाइथन एनवायरनमेंट. और इसके अंदर मैं मतलब किसी भी किस्म का अपना कोड लिख के यू नो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ टू शो के दिस इज रेडी मेड फॉर योर for writing and using Python code. So I have some boilerplate code with me जो कि उस endpoint से data consume करेगा और I'll explain this code to you also. So all that's happening is कि मैंने वो जो endpoint अपना REST endpoint था और उसके साथ जो मेरी authentication की थी इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा. Then all I'm doing is creating a URL request और उस request के अंदर मैं inputs के अंदर अपनी वेब सर्विस की inputs के अंदर मैं डेटा डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरी ये पेशेंट आईडी है उसके ये फीचर्स हैं और सारे के सारे फीचर्स मैं अपने इस JSON टाइप फॉर्मेट के अंदर मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ इनटू अ डिक्शनरी फॉर्मेट और उस डिक्शनरी फॉर्मेट को JSON के साथ मैं सीरियलाइज कर रहा हूँ और सीरियलाइज करने के बाद मैं एक वेब रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि उस एंड पॉइंट को हिट कर रही है विद दिस इनपुट. और ये इनपुट जब उस वेब रिक्वेस्ट इस इनपुट के साथ जब वो वेब रिक्वेस्ट क्रिएट की जाएगी तो उससे कोई ना कोई मेरे पास रिजल्ट आएगा. उस रिजल्ट के अंदर जो सर्विस की आउटपुट है जो कि मुझे यहाँ पे नजर आएगी उस सर्विस की आउटपुट से जो भी मेरी 3 फील्ड्स आ रही थी पेशेंट आईडी डायबिटीज की प्रेडिक्शन और उसकी प्रोबेबिलिटी वो निकाल के यहाँ पे दी जा रही है. वन थिंग व्हिच डजंट वर्क हियर इज कि बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड रीजन ये पैच अभी अजूर ने फिक्स नहीं किया हुआ. हमें यहाँ पे डायबिटीज का भी कोई ना कोई कॉलम देना पड़ता है. But I guess they will fix it soon enough. तो what I'll do is मैं यहाँ से अपना REST endpoint कॉपी करता हूँ, right?
और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके साथ ही जो मेरा यहाँ पे प्राइमरी की है उसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपनी की जगह के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। एंड व्हेन आई रन दिस सेल, तो wait, data fields are inconsistent with schema. Does the diabetes thing affect anything? Wait a minute. Diabetic, sorry. So when I run it with the correct all of the columns जो कि मॉडल इनपुट के तौर पे ले रहा था और उसके ऊपर आउटपुट हम मॉडल की लेते हैं, तो मुझे इंस्टेंटेनियसली रियल टाइम के अंदर किसी भी सेट ऑफ फीचर्स के ऊपर उसकी आउटपुट मिल जाती है। एंड दिस इज हाउ सिंपल इट इज टू स्टार्ट यूजिंग end-to-end machine learning pipelines using Designer. In a very short time हमने अपनी एक ट्रेनिंग पाइपलाइन बिल्ड की जिसके अंदर हमने डेटा सेट ऐड करके एक क्लासिफायर बनाया और उस क्लासिफायर के मॉडल को ट्रेन करने के बाद हमने इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद हमने रियल टाइम उसकी इन्फ्रेंस पाइपलाइन सेट की एंड वंस वी टेस्टेड दैट पाइपलाइन हमने उसे एक एंड पॉइंट के ऊपर डिप्लॉय किया और उस एंड पॉइंट को कोड के साथ जब हम रन करके देखते हैं या उसके अंदर अगर मैं थोड़ी बहुत अगर मैं चेंजेस करके देखूँ, दिस इज फॉर इंस्टेंस दिस इज दैट, तो still it gives me instantaneous predictions with a certain probability threshold कि ये बंदा diabetic है या नहीं। And that is the end of the demo. If you guys have any questions, feel free to ask now. इसके बाद हम अपना आज के बाकी टाइम के अंदर we will be giving you the credentials. I guess अली ने कुछ already share करती होंगे और you can आपको मैं एक PDF के अंदर इसका स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है, कौन सा स्टेप कैसे करना है, कहाँ पे कौन सा मॉड्यूल वहाँ पे ट्रैक करना है, जो भी मैंने सारा आपको डेमो दिया उस सब का प्रोसेस इन अ PDF फॉर्मेट आपसे शेयर कर देते हैं वो सारे स्टेप्स, सो दैट आप लोग हैंड्स ऑन खुद भी करके देख सकें। एनी क्वेश्चंस? मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, आई मीन ये इट वाज अमेजिंग, यू नो, ये टूल जो डेवलप किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, इट वाज प्रीटी क्विक, मतलब सेटअप करना। तो इज इट प्रोडक्शन रेडी? आई मीन डज इट स्केल इटसेल्फ? आई रिमेंबर आपने शुरू में बताया था, आई मीन कैन वी टेक इट टू प्रोडक्शन जहाँ पे आपके पास 70-80 हज़ार रिक्वेस्ट का लोड आ रहा होता है? आई मीन जस्ट आई एम अमेज्ड हाउ वेल इट इज यू नो डूइंग। ये एंड पॉइंट क्या हम एक्सपोज कर सकते हैं पब्लिकली जहाँ पे एक हैवी लोड है हमारे पास? और डेफिनेटली असद, इसके अंदर ऐसा है कि जैसे लेट मी गो बैक टू द कंप्यूट साइड। आई गेस मैंने यहाँ पे कंप्यूट आपसे शो करवाई थी क्रिएट करते हुए। सो जो मैंने जिस इन क्लस्टर के ऊपर मैंने अपना ये रियल टाइम एंड पॉइंट डिप्लॉय किया है ना, और जिसके ऊपर मैंने अपना रेस्टोरेंट क्रिएट किया है, उसके अंदर आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आपने देखा था कि उसके अंदर देयर वर 2 नोड्स, राइट? और उसके अंदर मैं एक ऑटो स्केलिंग वाली चीज जो है ना वो इनेबल हुई होती है। सो वेट, लेट मी सी हियर, if I try to create a new if I try to create a new cluster, right? So production के अंदर इसे कितनी कंप्यूट कैपेसिटी देना चाहता हूँ मैक्सिमम, राइट? उतनी मैं इसके लिए जैसे ऑन डिमांड करके रख दूंगा और उसकी वजह से इसकी स्केलेबिलिटी जो है ना, दैट डजंट स्टे एन इशू। क्योंकि अगर मैं है ना तो प्रोडक्शन डेमो के मैं इसे नाम दूं, जस्ट आई वांट क्रिएट इट इन द एंड, बट आई जस्ट वांट टू डेमोंस्ट्रेट। ये जो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ स्केल आप डिफाइन करते तो ये जो शुरू में उतनी कंप्यूटर्स को उठाता है ये अपने जो जब उसके बाद लोड आता है तो ये उसके ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 3 सेट किए यहाँ पर,
तो 3 जो है एट द इंस्टेंस जब आप इसको बनाएंगे उसी वक्त ही उठा के यूज कर रहा होगा, या ये जो है जब इसके ऊपर लोड आएगा तो ये 1 से 3 तक जाएगा? सो ये 3 जो है ना, ये इसी वक्त सेट कर दिया जाता है। जो कंप्यूट क्लस्टर था उसके अंदर ये वाली ऑप्शन है ऑटो स्केलिंग की, कि स्केल अप भी और स्केल डाउन भी कर सकता है। इसके अंदर फिलहाल मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस क्वेश्चन बाय कंफर्मिंग इट। मुझे जो पहले आइडिया था उसके लिहाज से देयर इज अ वे टू सेट इट टू ऑटो स्केल, कि अगर आपका अंडर यूटिलाइज्ड क्लस्टर है तो फिर उसे स्केल डाउन कर दे, और अगर ओवर यूटिलाइज हो रहा है तो फिर उसके अंदर नए नोड्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वलीद यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि मतलब 6 बजे के बाद भी वो लोग ये लैब कर पाएंगे? In case they aren't able to finish it in time. मेरा ख्याल है हम मैक्सिमम 7 साढ़े 7 बजे तक का टाइम रखेंगे। जब तक अगर आप ये इस लैब को अगर 1 गो में अगर आप फिनिश करना चाहो तो तब तक कर सकते हो। इफ समवन वांट्स टू शेड्यूल द लैब फॉर सम अदर डे देन यू प्लीज लेट अली नो। जो अभी करना चाहते हैं वो 6 बजे के बाद भी इसे कंटिन्यू कर पाएंगे, बट और अगर आप जल्दी उसे फिनिश कर लो इस लैब को तो यू कैन इवन लीव अर्लियर, और अगर आप बाद में फिनिश करते हो तो दैट्स ओके टू, बट नॉट मोर देन 7:30 आई गेस। ओके, कमर हियर। अली, इसका क्या प्रोसेस है अगर हमने लेटर ऑन इसको करना हो? लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं रात को 10 बजे स्टार्ट करूँगा, तो क्या प्रोसेस है उसका? कैसे आपको मैसेज व्हाट्सएप पे किया जाए? असल में हमें मैनेजमेंट ने यही कहा है कि हम लोग का जो सेशन होगा वो 6 बजे तक होगा, और 6 बजे तक ही आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप लोग लैब्स कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर किसी की इमरजेंसी होती है, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, लेकिन ये इमरजेंसी सूरत हाल में नहीं, दूसरे एंड से प्रैक्टिकली भी देखा जाए ना कि वी हैव ऑलरेडी स्पेंट अराउंड 6 आवर्स एंड वी कैन नॉट स्पेंड आई मीन 2-3 आवर्स मोर कंस्ट्रक्टिव। लेट मी गेट बैक टू यू। डेफिनेटली उस केस में सर कमर यूं करेंगे कि जितने पार्टिसिपेंट्स का ये वाला प्रॉब्लम होगा ना, उन सारों के साथ हम कोई यूनिफाइड टाइम सेट करेंगे जिस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमारे पास आईटी सपोर्ट भी मौजूद हो, जो कि एक ही टाइम के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट्स को अकोमोडेट कर सकें। वरना ये फिजिबल नहीं होगा कि हम किसी एक कैंडिडेट के लिए हम एक दिन करें और दूसरे कैंडिडेट के लिए हम एक और ऑड टाइम के ऊपर इनेबल करें इस सर्विस को। यस, एग्जैक्टली, योर कंसर्न इज वैलिड, बट हमें ये एक्सरसाइज कल के सेशन से पहले कंप्लीट करनी होगी ताकि कल हम उसको पिक अप फ्रॉम देयर। अगर हम आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेट कल जब हम नया सेशन में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। हैंड्स ऑन तो जरूरी है, ये कंसेप्टिव लॉन्ग ड्यूरेशन ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रॉब्लम इंडिविजुअल होंगे, सबके प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स होंगे, बट सर प्लीज टाइम पे रात को नहीं पुश करें। अगर ज्यादा रात को पुश करेंगे तो फैमिली टाइम होता है। ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ अभी, और फिर मैं आपको लोगों को बताता हूँ कब तक हम लोग टाइम इसका कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कल सुबह तक हो सके टाइम, तक आप लोग फिर रात को आराम से कर लें, फिर कल सुबह से पहले कर लें आप लोग, क्योंकि सेकंड जो व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब मैसेज किया है कि जो लिस्ट इनिशियल आपने शेयर की उसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो काइंडली वो भी नाम नीचे। जी मेरे ख्याल से आप लोग सॉरी मेरे ख्याल से आप लोग रजिस्टर्ड नहीं थे पहले क्या, लेकिन वो मैनेजमेंट की तरफ से था, उन लोगों ने अब कर दिया, हमें अप्रूव कर दिया। आप लोगों का 4 लोग थे जो अभी थे यहाँ पे, और जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं थे उन लोगों का अकाउंट वगैरह भी बन जाएगा, और हम लोग आपके साथ अभी शेयर भी कर देते हैं वो अकाउंट, आपके क्रेडेंशियल्स। और बाकी जितने भी लोग हैं वो मुझे जूम पे प्राइवेट मैसेजेस करें और मैं उनको उनके पासवर्ड शेयर करता हूँ, और फिर आप लोग करना शुरू कर दें। उसके ऊपर ये होगा कि जब आपको पासवर्ड दिया जा रहा है वो जब आप लोग एंटर करेंगे शुरू में इनिशियल, बस आपने पोर्टल पे जाना है एज़ोर के, आपने आईडी डालना है, और आपने उसके बाद
अपना पासवर्ड डाल दें। जब आप पासवर्ड डालेंगे तो आपको वो पासवर्ड एक चेंज करने के लिए आपको एक वो मैसेज प्रॉम्प्ट होएगा, उसमें आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है। उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन, एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला एक प्रोसेस शुरू होगा, जिसके ऊपर जिसमें आप, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर आप लोग अपने मोबाइल ऐप्स में कर लें, अपने मोबाइल में कर लें। वहाँ से फिर एक कोड जनरेट होगा। और मैं मतलब इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज हैं जो आते रहेंगे, तो इसलिए हम लोग अभी कहते हैं कि हम लोग अभी हैं यहाँ पे, तो हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। तो आप लोग स्टार्ट एटलीस्ट अभी कर दें, और फिर जो आप लोग फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है। आप स्टार्ट एटलीस्ट अभी कर दें, ताकि ये शुरू वाला जो ऑथेंटिकेशन वाला जो है मसला वो सॉल्व हो जाएगी। ये पासवर्ड अगर शेयर करते हैं तो ये इसको शुरू कर देते हैं अभी। ठीक है, मैं आपको, आप मुझे ज़ूम पे मैसेजेस करते रहें, मैं आपको पासवर्ड शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। और अभी जिनके नाम नहीं है लिस्ट के अंदर वो क्या करें? वो अभी बस 10 मिनट के लिए वेट करें, उनका अकाउंट बन रहा है, और उनको अगले 10 मिनट के अंदर वो भी शेयर हो जाएगा, ओके ठीक है। जी सर, पीडीएफ पे शेयर कर देंगे आप हमें? पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दो ज़ूम पे। हेलो, जहाँ मर्जी जूम करें, जहाँ कंफर्टेबल है जूम आप शेयर करते हैं। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है वो पीडीएफ की फाइल, और जिन 4 लोगों का नहीं था उन लोग 4 लोगों को मैं अभी डीएम कर दूंगा। मैं इंक्लूड हूँ उनमें 4 लोगों में, तैमूर अभी। हाँ, मैं आपको अभी प्राइवेटली मैसेज कर देता हूँ, ठीक है आपकी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।